Guys, namaste and welcome back to another video. I hope you all are doing well. So, Mumbai Indians have lost yet another match at Wankhede Stadium. समझ ही नहीं आ रहा क्या गलत है इस टीम में. If we talk about the course of the match, it was Hardik Pandya, the Mumbai Indians captain, who won the toss and he elected to bat first. First of all, according to me, a very surprising decision. क्योंकि टीम्स यूजुअली वानखेड़े स्टेडियम में चेस करना प्रेफर करती है. दे फील मोर सिक्योर नोइंग द टारगेट सो दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली. माइंड यू ग्राउंड भी मुंबई इंडियंस का जो ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम जो है बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है. यहाँ पे रन्स बनते, यहाँ पे रन्स चेज होते हैं. रिगार्डलेस, मुंबई इंडियंस बैटेड फर्स्ट. देयर बैटिंग टुडे वॉज ब्रिलियंट. Ryan Rickelton scored astonishing 123 runs of just 55 deliveries. Alongside him, Will Jacks को आज मौका मिला and he continued his brilliant World Cup form in the IPL. Scored 40 odd runs and इन दोनों की जो opening partnership थी that laid the foundation for Mumbai Indians mammoth total. After Will Jacks got out, it was Surya Kumar Yadav. अच्छा शॉट्स खेले, इंटेंट दिखाया बट couldn't convert it. Namandir same, couldn't convert it. Hardik Pandya scored 31 runs, a blistering 31 runs, and it was Hardik Pandya's and Ryan Rickelton's effort which helped Mumbai post a target of 244 runs. तिलक वर्मा भी बैटिंग करने आया, couldn't do much. रॉबिन मिन्स भी एक या दो ही डिलीवरी खेले हैं. सो ऑल इन ऑल अगर मुंबई की बैटिंग की बात करूं, इट वॉज 9 out of 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम मुंबई इन बैटिंग. द पिच वॉज एन एब्सोल्यूट बेल्टर. प्रॉपर रन मारने के लिए पिच बनाई गई थी. क्रेडिट टू ईशान मलिंगा जो कि SRH के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे. ही गेव अवे ओनली 29 रन्स इन हिज कोटा ऑफ 4 ओवर. प्रफुल हिंगे टुक 2 विकेट्स बट ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव. He gave away 54 runs in his quota of 4 overs. I don't even want to talk about other bowlers. They all leaked runs. It was like someone has left the tap open. Seriously. And extras were only 8 or 9 while the Mumbai Indians were batting. So they have conceded runs from the bat. It's actually shameful. My pitch kaisa bhi ho, how can you consistently concede 200 runs in T20 cricket? I'm clueless. Coming on to chase, I've told this millions of times before. You need to get Abhishek Sharma and Travis Head out before the power play ends. If these two guys play through the power play, your 40% of the match is gone. You have already lost 40% of the game right there. Today as well, Abhishek Sharma and Travis Head posted 90 runs in the power play. 90 runs in just 6 overs. Abhishek Sharma scored, astonishing 40 odd runs, a blistering 40 odd runs. And Travis Head before this match was batting at an average of 20. I don't know what happened today. He scored 76 runs of just 30 deliveries. Smashed everyone out of the park. Even Jasprit Bumrah को उन्होंने 99 मीटर्स का 6 मारा है स्ट्रेट ओवर हिज हेड. आज जसप्रीत बुमराह को पिटाई पड़ी है, प्रॉपर पिटाई पड़ी है. क्रेडिट टू गजनफर जिन्होंने कंसेक्यूटिव 2 डिलीवरीज में विकेट लिए. पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया, उनको एक्चुअली आउटविट किया है बहुत स्मार्टली. एंड सेकेंड, ईशान किशन गॉट प्लेड ऑन. उसके बाद आया हेनरिक क्लासन. नाउ दिस मैन इज एन एब्सोल्यूट एलियन. ये दूसरा एलियन निकल के आया है साउथ अफ्रीका से. आज साउथ अफ्रीकन्स का दिन था. हेनरिक क्लासन 2 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं बट हिज टच इज स्टिल इम्पेकेबल. क्या बैटिंग कर रहा है भाई बंदा. ही स्कोर्ड 65 रन्स ऑफ जस्ट 30 डिलीवरीज. एंड जिस सिचुएशन में वो आए थे वहाँ पे मैच एकदम बैलेंस पे फंसा हुआ था. It could have gone anywhere. Mumbai Indians were fighting well. It could have easily gone anywhere. But, he held on to his nerves, backed himself, scored brilliant 65 runs. And supporting him was Nitish Reddy, who scored 21 runs of just 17 deliveries. And then came in Salil Arora, another youngster, another uncapped Indian player, just 23-year-old from Amritsar. Scored 30 runs of just 10 deliveries.
I think so. He smashed 3 6s and 2 4s. Wow, it was brilliant, and it was Salil Arora and Henrik Klassen who got SRH through. 7 या 8 डिलीवरी बाकी थी एंड दे चेस्ड 244 रन एट वानखेड़े. मुंबई की बॉलिंग की मैं बात ना ही करूँ तो ही ठीक है. गजनफर पिक 2 विकेट्स बट ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव. 50 रन दिए 4 ओवर में. जसप्रीत बुमराह द मोस्ट इकोनॉमिकल द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर ऑफ द IPL के फिगर्स थे. 4 ओवर्स 54 रन फॉर 0 विकेट्स. हार्दिक पांड्या क्या हो गया इस सीज़न भगवान जाने. ही इज़ लिकिंग रन्स. आज की पता नहीं पिच क्या बनाए थे, क्यों बनाए थे, आई डोंट नो. और मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि IPL में बॉलर्स के लिए विकेट क्यों नहीं प्रिपेयर किया जाता. भाई वी लाइक अ क्लोज गेम एज वेल. हमको 140 130 वाला भी गेम चलेगा. वी डोंट वांट टू सी टीम स्कोरिंग 240 रन्स एंड देन टीम्स चेजिंग 240 रन्स इन 19th ओवर. यार this is not cricket and you're not leaving anything for the bowlers यार. सबको बिठाई पड़ी. जसप्रीत बुमराह अगर 54 रन खा रहे तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की पिच थी. एंड जैसे कि आई सेड इन द वीडियो प्रीवियसली कि भाई पिच कैसी भी हो टीम्स कांट कंसीड 2 रन्स कंसिस्टेंटली. हर दूसरे मैच में 200 रन पड़ रहे हैं, हर दूसरे मैच में 200 रन चेज भी हो रहे हैं. इट्स अनएक्सेप्टेबल. I don't know man. It's just मज़ा नहीं आता यार ये वाला क्रिकेट देख के. छोड़ते हैं ये सब बातों को. टुमारो RCB आर प्लेइंग. गुजरात टाइटन्स आर होस्टिंग RCB एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम. माइंड यू इसके पहले जो मैच था ये रिटर्न फिक्चर है. RCB ने बहुत ईजिली GT को हराया था. विराट कोहली स्कोर ब्रिलियंट 81 रन्स. साई सुदर्शन से हमको 100 देखने को मिला था. सो कल का भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई सीरियसली होप भाई अब मैं बोर हो चुका 200 देख के. आई सीरियसली होप कि कल का मैच 170 160 रन्स पड़े एंड आखिरी तक जाए regardless of whosoever wins the match. Obviously I'm hoping that RCB wins the match but I want to see a close match जहाँ पे 170 160 रन्स पड़े तो भी I'll be very happy. Seriously guys. So thank you so much for watching guys. Please like, share, comment and subscribe.